at All India Council of Technical Education, Ministry of Education, Central Sanskrit University, New Delhi, Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, Ministry of Ayush, University of Patanjali, Haridwar, and IIT Roorkee Alumni Association. A lamp symbolizes knowledge and enlightenment and dispels darkness. The act of lighting a lamp is symbolic of the strides we take towards that light of knowledge. Tamasoma Jyotirgamaya is a well-known Sanskrit verse. To upkeep this tradition steeped in the culture of Bharat, I would like to invite the respected dignitaries Dr. Nirmaljit Singh Kalsi, Professor K.K. Pant, Professor U.P. Singh, Professor Ganti Murthy, Professor Srinivasa Varakhedi, and Professor Anil Kumar Gauri Shetty to come onto the stage and light the lamp. As the lamp is being lit, volunteers of Sanskrit Club IIT Roorkee will be chanting traditional slokas. Shubham Gurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada Shubham Gurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada Shatrubuddhi Vinashaya Deepajyote Namostute Deepajyote Namostute Shubham Gurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada Vipajyotir Parabrahma Vipajyoti Jananana Vipajyotir Parabrahma Vipajyoti Jananana Vivo Haritu Papam Sandhadi Panamostuti Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada. Thank you, dignitaries. Thank you to the volunteers of Sanskrit Club. I now request all of you to rise up for the Kulgi. Sanskar Jayati Jayati Sanskar Indri Shingo Se Abhinand Jayati Jayati Sanskar Jayati Jayati Sanskar Shiksha आदर्शों में जीवन शिल्पी चनारक शिक्षा आदर्शों में जीवन शिल्पी चनारक श्रम विदाना के नाते सामिरत यंत्र Jayati Jayati Veda Sanskar Jayati Jayati Veda Sanskar Jai Jivan Rasadha Setu Bandhu Yunga Jolate Jai Jivan Rasadha Setu Bandhu Yunga Jolate Andereshme Yale
Jayati Jayati Vidya Sansthan. Jayati Jayati Vidya Sansthan. Say Janahit Jeevan Nit Hote. Jaya Sai Shobha Kare. Say Janahit Jeevan Nit Hote. Jaya Sai Shobha Kare. Jayati Jayati Vidya Sansthan. Sevi Pitman Swapnayosi Arishitayo Chande. Sevi Pitman Swapnayosi Arishitayo Chande. Savyati Purana Rashtra Jeevan Jayati Jayati Vidya Sansthan. Jayati Jayati Vidya Sansthan. Imriti Shango Seya Pranam Jayati Jayati Vidya Sansthan. Jayati Jayati Vidya Sansthan. Jayati Jayati Vidya Sansthan. Jayati Jayati Vidya Sansthan. Thank you all. I now request Professor K.K. Pant to welcome the chief guest by presenting him with a bouquet. Thank you, sir. I now request Professor U.P. Singh to welcome Professor Varakhedi. I now request Professor Anil Gauri Shetty to welcome Professor Ganti Murthy. I now request Professor Anil Kumar Gauri Shetty, convener of the conference, to deliver the welcome address and introduce the dignitaries. सर्वेषां नमस्कारः। मुख्य अतिथि डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी महोदयः, विशिष्ट अतिथि श्रीनिवास वरखेडी महोदयः, विशिष्ट अतिथि घंटी सूर्यनारायणमूर्ति महोदयः, निर्देश अस्माकं IIT रुर्की निर्देशकः कमल किशोर पंत महोदयः, उपनिर्देशक महोदयः UP सिंह महोदयः, सर्वेषां हार्दिक स्वागतम्। अहम् अनिलः भौतिक विभागे सह प्राध्यापक रूपेण कार्यं करोमि, and it is really my pleasure to be here on this auspicious occasion to introduce the dignitaries present on the stage. Dr. Nirmaljit Singh is a retired IS officer, 1984 batch, Punjab cadre. He did BE from University of Roorkee in 1979. MTech from IIT Delhi and PhD from Thapar University, Patna in 2009. Currently, he is the chairperson of National Council of Vocational Education and Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. He was Additional Chief Secretary, Home Affairs and Justice, Government of Punjab, and Joint Secretary and Additional Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India from 2008 to 2015. He is also the President, IIT Roorkee Alumni Association, Delhi chapter,
and IIT Roorkee Heritage Foundation board member. And yesterday only I came to know one of the rarest things that we come across. During his IAS preparation, he has taken physics and electrical engineering as options, and he was a topper of the course in program in IIT Roorkee at that time. So really very happy to have you here, Dr. Kalsiji. Then Vishishtatidhi Mahodaya, Professor Srinivasa Varkhedi. He is currently Vice Chancellor of Central Sanskrit University, New Delhi, the premier and largest institution of higher education in Sanskrit. He served as Vice Chancellor in Kavikulaguru Kalidasa Sanskrit University and Gondwana University, Gadchiroli from 2017 to 2022. He is known for organization of summer schools, workshop, international and national conferences and seminars in many places. And it was his workshop on how to study Indic sources at IIT Roorkee 6 years back that has changed the direction in which Sanskrit and IKS activities has grown at IIT Roorkee. He has extensively worked in the field of Sanskrit computational linguistics. His current interests are Sanskrit pedagogy, e-repository for Sanskrit, research methodology of Shastras, and philosophy of language. He has been engaged in dialogues between traditional systems of knowledge and modern thinking. He has received many awards and titles for his work in the field of Sanskrit and IKS. This includes Maharshi Badanarayan Vyasamman, an award given by the President of India in 2008, and Swami Chinmayananda Research Gold Medal in 2013. Then another Vishishtatidhi, Professor Ganti Sudanamurthy from IIT Indore. He has been appointed as the National Coordinator of IKS Division of Ministry of Education at ICTE, works in the ACT office in New Delhi. He did MTech from IIT Kharagpur, and I was fortunate to have overlap of 1 year with him while studying in IIT Kharagpur, and pursued PhD in USA. After that, he joined as a faculty member in Oregon State University. After becoming full professor, because of his passion towards contributing to Bharat, he came back to Bharat and joined IIT Indore as a full-time professor, full professor. Then recently he took over charge as the National Coordinator of IKS Division. We are very happy to have you here, Professor Murthy. And under his leadership, the IKS Division is able to promote IKS in terms of teaching and research under multi-dimensions. So with this brief introduction of the dignitaries, I remember one famous verse in Rigveda. Samaniva akutihi, samana hridayanivaha, samanam astu vo manaha, yathavaha susaha sati. This is called as some kind of Sangatit Sukta. When you try to achieve one goal collectively, then what kind of qualities one has to imbibe? I am sure in this conference, we all will try to be aligning in terms of how to promote IKS through various channels. And I'm sure everybody will get benefit by interacting with everyone. With this, thank you so much for your attention and taking pain to travel all over from India to IIT Roorkee. I hope for a wonderful stay at IIT Roorkee, the oldest technical institute in Asia, recently completed 175 years of establishment. Dhanyavadaha. Thank you, Professor Gauri Shetty. I would like to invite our Honorable Director of IIT Roorkee, Professor K.K. Pant, to deliver the opening remarks. सभी को मेरा नमस्कार. Very good afternoon to all of you. मंच में विराजित डॉक्टर निर्मलजीत सिंह जी, the chief guest of the day. The distinguished other personalities, Dr. Varakhade ji, who is the Vice Chancellor of Central Sanskrit University. Dr. Ganti Murthy ji, who is the Vice Chancellor of, who is the National Coordinator of IKS. Professor U.P. Singh, our Deputy Director. Professor Gauri Shetty ji, who is the coordinator of this Yuva Sangam or Youth Conference, which is going to be held for 3 days. All the distinguished personalities who are sitting of the dais, my dear friends, faculty colleagues, all the participants and all the research scholars of this institute. It's my pleasure to welcome all of you. उत्तराखंड की देवभूमि में
IIT रुड़की स्थित है और ये देवों के नाम से जानी जाती है। गंगा यहाँ से प्रवाह करती है और ऐसी पाश्चात्य सभ्यता की अगर जब बात करते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब बात करते हैं, यहाँ से बहुत संस्कृति यहीं से उत्थान हुआ, जिनको हम कहें कि संस्कृति का जन्म, भारतीय संस्कृति का, चाहे वो नीलकंठ हो, चाहे वो गंगोत्री गंगा से आई, और चाहे वो हिमालय ऊपर बात करते हैं, जब हम हिमालय से जो संस्कृति डेवलप हुई, तो उत्तराखंड जो है भारतीय संस्कृति के विकास में उत्तराखंड का एक अलग ही योगदान रहा है। हमारे ऋषि मुनि, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की। और जो अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बताने की जरूरत है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंची हुई थी बहुत पहले। आज से अगर हम बात करते हैं 200 साल पहले, 250 साल पहले। और जैसा कि आप हमारे कुलगीत में सुने, जो IIT रुड़की का कुलगीत है, सुमित्रा नंदन पंत जी का लिखा हुआ गीत है, वो उसमें भी वो बात कही गई है, जिसमें अंतरिक्ष में यान उड़ाकर नवयुग को देता आह्वान। और हम अपने सभी विद्यार्थियों को इस चीज को याद दिलाते हैं। और आपने 2 दिन पहले ही देखा कि चंद्रयान 3 जो है, भारत का जो चंद्रयान 3 है, वो चंद्रमा तक पहुंच गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉलेज हम बात कर रहे हैं आज के युग में, जिसको याद दिलाने की हमें जरूरत पड़ रही है, हमारे युवा संस्कृति को उन सब चीजों को आगे लेके जाना है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम, स्टील की जब हम बात करते हैं, तो भारत में स्टील बनाया जाता था और वो निर्यात हुआ करता था। और वो टेक्नोलॉजी बाद में बहुत से कंट्रीज ने लेके कॉपी करके उसको फिर से यहाँ ले आए। हल्दी, चंदन, आप देखें कि हमेशा उन चीजों को यूज किया गया है। आयुर्वेद में हमेशा इस तरह की औषधियों का प्रयोग किया गया है और उनको लिखा गया है। और सारी चीजें मौलिक रूप से अभी भी जो हमारे, अगर आप पुराने ग्रंथों को देखें तो उसमें मिलेंगी। तो मेरा आप सभी से ये जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कि क्या हम साइंटिफिकली कुछ जो चीजें हैं अभी जो प्रूव नहीं हो पाई हैं और लेकिन ग्रंथ में लिखी गई हैं, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, हम जीरो की बात करते हैं, तो क्या हम उसको फिर से साइंटिफिकली प्रूव करके विश्व को दिखा दें कि ये सारी चीजें जो हैं भारत में बहुत पहले से ही चल रही थी। और जो नॉलेज, जो जिस चीज की बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप हो रही है, उसका एक तरह से बहुत बहुत चीजों को जो है पहले ही हमारे ग्रंथों में लिखा जा चुका है। आई थिंक देयर इज ए नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, एंड विद ऑल ऑफ योर सपोर्ट्स, with youths from all over the country, they have to collect together and they have to work on these kind of several issues, and then we have to show the world that IITs are involved in those kind of research, NITs are involved, all universities are involved, और हमारे जितने भी योग आश्रम हैं वो सब इन्वॉल्व हैं। और ये तभी हो पाएगा जब हम सब मिल के काम करें और साइंस के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में जो पहले ग्रंथों में लिखा गया उसको हम दिखाएं और विश्व को दिखाएं। तो हम बात करते हैं कि पूरा विश्व एक है, वन अर्थ वन फैमिली वन सॉल्यूशन। तो जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो भारत ने ही शुरू की। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, जहां डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन की बात हम करते हैं, जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है। और हम चाहते हैं कि हम ये सारी चीज विश्व को दिखाएं। और इस 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कई इस तरह के जो एब्स्ट्रैक्ट में देख रहा था कि more than 425 extracts have been submitted, and now finally these will be presented during the next day. There are a lot of plenary and keynote talks also, and I'm sure that these will provide the new domains of research and development activities in an institutes like IRND. I welcome to all of you in our this green campus, which has historically 175 years completed and moving in its 176 years. And lot of things in terms of flowers and fauna, if you look at more than 48,000 herbal medicinal type of plants are available in this campus. You have to identify those things and look forward for the research on those areas, right? How can we create those kind of, right, the knowledge culture among our youth? That is also very important, because most of the time the new generation, it looks like when you talk about the science advancement only through mobiles, only through laptops, but there are many things which need to be done physically also,
like yoga is one of the most important, I think, activities which is to be done. And what is the advantage of yoga? Medically, it is already proven, and that is, I think, everybody has to learn. So thank you very much for your attending this session, and I hope that you will have very comfortable stay in our campus. Namaskar, Jai Hind. Thank you, Professor Pant. I now invite Professor G.S. Murthy, National Coordinator, IKS Division, to address the participants. मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, Sabhai नमः, Sabhapadabhyascha namo नमः. A very warm good afternoon to all of you. It's my pleasure to be back again here in IIT Roorkee and then addressing you all here. And it's delightful to see a lot of young faces. As at the Indian Knowledge Systems Division, our team works on rejuvenating and mainstreaming Bharatiya Jnana Parampara into our current mainstream education system in the context of current societal problems and emerging societal problems. And so when we talk about parampara, what that means is we are looking at the past, looking at the present, and also envisioning the future. And when we do that, it is important not only to feel the pride and confidence and derive the confidence from our past, but also to work on the present and also anticipate what kind of emerging challenges and contemporary issues can be solved with the accumulated wisdom of several millennia that our Bharatiya Jnana Parampara has provided us. And then what does that really mean? How do we solve current and emerging problems? If you think about it, it has to do with the perspectives. One of the things that Richard Feynman, one of the brilliant physicists has said is that the ability of an intelligent mind is to hold various perspectives at the same time. While looking at the data may look the same, but then the ability to look at it from multiple perspectives is what differentiates a normal mind from a genius. And to aid that, Bharatiya Jnana Parampara provides you a different perspective. That is what makes the Indian knowledge systems Indian. What is it Indian about this knowledge system? If we call in Indian chemistry, what is that Indianness about it? When you look at it, it is all about the Bharatiya Drishti, or the perspective that this knowledge systems provides. And it's a very different way of looking at the world. And that translates into many, many things, into the methodologies, into the theories that we form of the world, and many such things. And when we think about that, that is something that we need to be thinking about. The Laukika Prayojana also. Of course, our Bharatiya Jnana Parampara talks about Adhyatma Parampara. When we talk about the four Purusharthas, Dharma, Artha, Kama, Moksha, two of the Purusharthas, Artha and Kama, are essentially about the Laukika Prayojana. The current context, in the way that the academic system is right now functioning, because of various historical issues, this brilliant Bharatiya Jnana Parampara has been confined to the libraries. If you look at it, last 100 years or 150 years, there's not been many books, original books written in this area. New sutras formed, something like Sushruta Samhita has not been written. And if we want to talk about a parampara, it is not sufficient to say we had Sushruta 2,500 years ago. We had Panini 3,000 years ago or 2,500 years ago. It is important to create new Paninis. It is important to create new Aryabhattas who have that Bharatiya Drishti, but will be a guiding light to the world and intellectual towering intellectuals of the world. And that is what will make our Bharat Atmanirbhar Bharat. Because when you cannot look at the world from your perspective, what kind of Atmanirbharta are we talking about? And that is when the world will respect us and we can really truly reclaim our title as the Vishwaguru. And what that means is we have to address the Laukika Prayojana first. So that is what our IKS division works on. It works on Bharatiya Jnana Parampara, Bharatiya Drishti, and the Laukika Prayojana in whatever activities that we do, so that we can mainstream and rejuvenate the Indian knowledge systems and bring it into the mainstream academia, research, society basically, and bring it from the libraries to the laboratories. And the major way that it can be accomplished is through our youth. Remember that parampara I was talking about? It is not enough to talk about our past. It is important that this parampara continues. And parampara typically means something that is flowing. That is where you all as youth
come into the picture, because unless you participate and take ownership of this parampara, this is not going to go forward. Therefore, it is with that vision that this youth conference was conceptualized, and this is the second youth conference that we are having here in IIT Roorkee, and I'm so happy to see a lot more participation here. And this was specifically designed for you all to do two things. One, to make sure that you hear from the topmost experts of Indian knowledge systems from various domains, who will provide you a perspective and broad-based understanding of Indian knowledge systems, are not necessarily about singular facts that you can read anywhere else. And the second thing is to make sure that you understand and you see the effect of networking, Kalau Sangha Shakti, the importance of coming together in Kali Yuga is is of utmost importance. Therefore, bringing you all together and to assure you that you're not alone. There are hundreds and thousands of youngsters, experienced mentors who are there to guide you, and thousands of youngsters and friends like yours spread across the country who will take this parampara forward. It is with our sincere hope that you will all enjoy this 2-day conference and take this parampara forward, that I wish you all the very best, and I hope you get to engage with the Indian knowledge systems in a much more comprehensive way, and you all become towering scholars who will be the intellectual leading lights of intellectuals for the entire world. Namaste. Dhanyawad. Thank you, Professor Murthy. Next, I would like to invite Professor Srinivasa Varakhedi, Vice Chancellor of Central Sanskrit University, New Delhi, who has been providing valuable guidance to the organizing team to address the participants. सर्वेभ्यः प्रणामाः। गंगातीरे प्रवृत्तेस्मिन् अत्यन्तं रमणीये कार्यक्रमे राष्ट्रीय युवा संगमे भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। डॉक्टर निर्मलजीत सिंह खलसी, प्रोफेसर पंत, प्रोफेसर यूपी सिंह, प्रोफेसर घंटी मूर्ति, Dr. Anil Gauri Shetty, and all other my colleagues assembled here. मैं इस नया युग का नाम देता हूं भारत प्रत्यय का युग है। दिस इज द एज ऑफ भारत प्रत्यय। अपने आप को साक्षात्कार करने के लिए हम नूतन नवीन यात्रा में प्रयासरत हैं। इस यात्रा को हम एक नया नाम यदि देंगे, भारत प्रत्यय यात्रा है। हमेशा ये प्रतीत होता था कि जब भी हम भारत विद्या के बारे में बात करेंगे, तब एक हमारी परंपरा में, एक हिस्ट्री में देखेंगे तो इसका एक नाम था। इट वॉज नेम्ड एज ओरिएंटल स्टडीज, प्राच्य विद्या। तो प्राच्य विद्या के नाम से इसको हम अपने आप से दूर कर देते थे। यह हमारे संबद्ध विषय नहीं, ये प्राच्य विद्या है। नॉर्मली ओरिएंटल स्टडीज आर कंडक्टेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के भूत को यदि जानना है, भारत के भूत को यदि जानना है, तो आप ओरिएंटल स्टडीज में जाइए। तो आज पहली बार आईआईटी रुड़की में इस प्रांगण में आने के बाद मुझे लग रहा है कि ओरिएंटल स्टडीज, भारत की जितने भी ओरिएंटल स्टडीज का नाम परिवर्तन हो गया है, भारत विद्या बन गया है, भारत स्टडीज किया जा रहा है। वी आर कनेक्टिंग दिस नॉलेज विद द फ्यूचर ऑफ इंडिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी आईकेएस को भारत के भूत से संबंध नहीं है, ये भविष्य से संबंध है। तो हम यदि भविष्य निर्माण करने का एक बहुत बड़ा युवा सम्मेलन यहाँ हो रहा है, जो भारत के भविष्य है और भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, वो आपके हाथ में आईकेएस आया है। सो आईकेएस इन राइट हैंड्स। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गौरी शेट्टी, यू हैव टेकन वेरी ग्रेट स्टेप। इसलिए बता रहा हूं कि वेस्टर्न पैराडाइम में इस ओरिएंटल स्टडीज को हमेशा हम वो देखते हैं कि इसको कोई लिविंग
जो भी व्यवस्था है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आइदर दीज सब्जेक्ट्स आर डेड और दे आर रिजेक्टेड। उनके बारे में यदि चर्चा करनी है तो अपॉरेंटल स्टडीज पढ़ी, लेकिन वेस्ट में ये सारे नॉलेज डेड हो गया था, वेस्ट में नॉलेज डेड हो गया था, वेस्ट में रिजेक्टेड हो गया था, इसलिए वेस्ट ने उसको ओरिएंटल स्टडीज कहा। लेकिन हमें क्यों करना है? हम भारत के लोग इसको इसको हमारे जीवन में लेके आ रहे हैं। तो अवर नॉलेज सिस्टम इज नॉट डेड, इट इज नॉट रिजेक्टेड, इट इज लिविंग। सो लिविंग कंडीशन में जो है उसको स्टडीज करने के लिए हमें कोई भी लज्जा नहीं होनी चाहिए। आज पहली बार यह भारत प्रत्यय का उदय हुआ है, इसलिए मैं आईआईटी के सभी निदेशक और आप सब आचार्यों को मैं अभिनंदन करता हूं। एक नया पीढ़ी को निर्माण करने में आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो उसके साथ में और एक बात जोड़ना चाहता हूं, व्हाट इज दिस केस? सो इज दिस जस्ट कंटेंट और इट इज जस्ट ए स्ट्रक्चर or it is process or some conclusions which are already derived and we have to study them? मैं कहता हूं भारत के जितने भी विद्याएं हैं उसको हम कंटेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे तो है कंटेंट, उसको एक यदि भारत विद्याओं को आज के परिप्रेक्ष्य में देखना है, वी शुड स्टडी द पैराडाइम ऑफ इंडियन थिंकिंग। So very important aspect of Indian studies or Indian knowledge studies is paradigm studies. तो हम पैराडाइम स्टडी करेंगे। देन 3 दिनों में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, डोंट रीड द कंटेंट, डोंट लिसन दीज लेक्चर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंटेंट, बट लिसन टू देम with a new perspective, that is you are getting the paradigm of thinking. मैं आज आपको ऑफर करता हूं, हम सो फार मतलब all our efforts were towards western Indian content and in western paradigm. So far we are doing it, Indian content in western paradigm. All our books which are written on our in ancient Indian studies, they are from western perspective, or we are trying to teach the westerners. Don't do that. Indian paradigm, western content. आज के जितने भी दुनिया में कंटेंट है उसको वेंडन पैराडाइम में रीशिफ्ट करने का जरूरत है। इसलिए ये पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए शायद यह युवा संगम बहुत बड़ा योगदान देगा। इसमें मैं इतना कहना चाहता हूं, आज यहाँ देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ हमारे उपनिषद की एक बात मुझे याद आ गई, आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठा युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठः बलिष्ठः। ऑप्टिमिस्टिक, सद्भाव युक्त, दृढ़िष्ठ, डिटर्मिनिस्टिक, मन से समर्थ और बलिष्ठ, शरीर से बलवान। ऐसे हमारे युवा पीढ़ी के साथ यदि एक आईकेएस का पैराडाइम शिफ्ट होगा तब भारत का भविष्य बनेगा। थैंक यू वेरी मच। आई कंग्रेचुलेट एंड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ IIT Roorkee, Professor Pant and Professor Gauri Shetty. Thank you so much for inviting me. Thank you, Professor Varakhedi, for your wise words. Before we move on to the address of the chief guest, I would like to invite all the dignitaries to come forward for the launch of the 3 books. I am honored to introduce the authors of the book Archaeometallurgy of India from Rig Veda to Valmiki Ramayana, to be released at this conference by our esteemed chief guests. The authors Sri Satya Narayan and Sri Naveen Chandra are distinguished alumni of IIT Roorkee. Sri Satya Narayan received his Bachelor of Metallurgical Engineering in 1967 and Sri Naveen Chandra received his Bachelor of Metallurgical Engineering in 1969. Over their 50 years professional journey, Sri Satya Narayan specialized in corrosion engineering and worked in the entire spectrum of oil and gas industries, while Sri Naveen Chandra specialized in iron making and worked in research and development establishments. Both authors have authored several technical papers in their respective fields of specialization. In addition to their expertise, they are greatly interested in India's ancient history and knowledge systems. I now invite Sri Satya Narayan
who is a co-author of the book Archaeometallurgy of India from Rigveda to Valmiki Ramayana, to come onto the stage and accompany the dignitaries to release the book. Next, I invite Dr. P. Nandakumar, International Coordinator of Samskrita Bharati and designer of the course Subhashita Samskritam, to come onto the stage and accompany dignitaries on the stage to release the book. I shall be introducing the book Subhashita Samskritam in Sanskritam itself. Subhashita Samskritam iti pustakam na kevalam pustakam apitu kaschit parikshita paఠ్యక్రమः. Anena Samskrita Pathanam tatheva Subhashitanam Pathanam saheva shakyate. Subhashita Pathanen Mulya Shikshanamapi Sahajam Bhavati. तथा पश्यामः चेत् अनेन पुस्तकेन सुभाषितं तद्वारा संस्कृतं तथा मूल्यानि अपि ज्ञातुं शक्यन्ते. एवं कार्यत्रयम् एकत्र संयोजितम् अस्ति. ईदृशः पाठ्यक्रमः संस्कृतभारत्या रचितः रुड्की प्रौद्योगिकसंस्थया सहस्राधिकजनेषु सफलतया प्रयुक्तः अधुना पुस्तकाकारः प्राप्तः. अनेन संस्कृतेन संभाषण परिचयं तथा सामान्यं भाषाज्ञानं च प्राप्तुं शक्नुवन्ति. Next, I invite Professor Mahavir Agrawal, Pro Vice Chancellor of the University of Patanjali and author of the book Mahavira Kirti Saurabham, to come onto the stage and accompany the dignitaries to release the book. Sorry, author Professor Manohar Lal Ariji to come on the stage. अनेक संस्कृत महाकाव्यों के रचयिता प्रोफेसर मनोहर लाल आर्य द्वारा विरचित महावीर कीर्ति सौरभम इस सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज भी देव भाषा संस्कृत में उत्तमोत्तम काव्यों का निर्माण हो रहा है. इस महनीय कृति में महाकवि ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित महामहोपाध्याय डॉक्टर महावीर अग्रवाल की 50 वर्षों की संस्कृति तथा वेद की निष्काम भाव से की गई सेवा का भारतीय संस्कारों का विविध छंदों में अनेक अलंकारों से अलंकृत कविता के रूप में भावपूर्ण चित्रण किया है. 5 खंडों में विभक्त यह कृति आज आईआईटी के सभागार में मान्य अतिथियों के कर कमलों में लोकार्पित की जा रही है. इसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर शुभम दीक्षित ने किया है और इसे प्रकाशित किया है प्रणव प्रकाशन, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश. Thank you, dignitaries. Thank you to all the authors. Now I would like to invite the chief guest, Dr. Nirmaljit Singh Kalsi, Chairperson, National Council for Vocational Education and Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, to address the gathering. I request the other respected dignitaries to take their honorable seats among the audience. Professor K. Pansu, Director IIT, Roorkee.
Professor Srinivas, Professor Ganti Murthy, Professor Gauri Shetty ji, Professor Agrawal, जहां उपस्थित सारे महानुभाव, आज बड़े आनंद का विषय है कि मुझे यहाँ आप सबके बीच इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में कुछ विचार व्यक्त करने का मौका प्रदान किया है। तो मेरा आज का जो व्याख्यान है इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं आपको जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इसकी सीमाएं दिखा सकूं और आपके दिल में एक जो प्राइड की फीलिंग अपनी अपनी परंपरा को देखकर अगर आए और उसको कैसे आपने नए परिप्रेक्ष्य में नए नॉलेज सिस्टम के साथ जोड़ना है, तो मैं समझता हूं कि जो कॉन्फ्रेंस है इसका पर्पस हल हो जाएगा। नए परिप्रेक्ष्य में नए नॉलेज सिस्टम के साथ जोड़ना है, तो मैं समझता हूं कि जो कॉन्फ्रेंस है इसका पर्पस हल हो जाएगा। नए परिप्रेक्ष्य में नए नॉलेज सिस्टम के साथ जोड़ना है, तो मैं समझता हूं कि जो कॉन्फ्रेंस है इसका पर्पस हल हो जाएगा। पूरा विश्व परिचित है नए परिप्रेक्ष्य में, इसलिए परिचित है कि नए नॉलेज सिस्टम के साथ जोड़ना है। इस मैं समझता हूं कि जो कॉन्फ्रेंस है इसका पर्पस हल हो जाएगा। और एक सिंगल विश्व ऐसा है जो नए परिप्रेक्ष्य में इसलिए परिचित है, नए नॉलेज सिस्टम के साथ जोड़ना है। भारत की ज्ञान परंपरा का सार हो जाएगा कि हम और एक सिंगल विश्व ऐसा है जो सारे वर्ल्ड को भारत की हम सबका भला चाहते हैं। है वो कभी हम इस रोशनी में ऊपर चला है जो सारे वर्ल्ड अपने कार्यकाल में बहुत सारी कंट्री डायलॉग का मौका मिला है, लेकिन जो हमारी फिलॉसफी किसी कभी हम इस देश सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, हम है विश्व का फायदा। बहुत सारी माइंड सेट का एक सोच जो हमारी फिलॉसफी बहुत बड़ा डिफरेंस है। देश सिर्फ अपने ग्लोबल टाइमलाइन पर आता है, हम है विश्व का फायदा। जो आप ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं, माइंड सेट का वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुमेरियन सिविलाइजेशन है जिसको ग्लोबल टाइमलाइन पर भी आए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो इंडस वैली 3500 BC से कुछ लोग मानते हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन मेरा मानना है कि ये तकरीबन 5000 BC से शुरू हुई सिविलाइजेशन है। सबसे पुरानी सभ्यता जो है हमारी आपके सामने मानते हैं। मेरा मानना है भारत जो है इसकी सभ्यता बाकी सारी सभ्यताओं से आगे है। सबसे पुरानी परे जो है हमारी अभी जब विश्व की बहुत सारी सभ्यताएं बेसिक विचार कर रही थी, हम बहुत उच्च विचार करके सेल्फ रियलाइजेशन का जो जब तक लोगों को होश आया, बाकी विश्व को होश आया, हमसे कहीं आगे बेसिक विचार कर रही थी। अगर मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखूं सिर्फ तो -4000 से जो अर्ली हड़प्पन पीरियड से लोगों को होश आया, फिर मैच्योर हड़प्पन आया, मध्य पीरियड आया, गोल्डन पीरियड आया, फिर हमारी नॉर्थ और साउथ की दोनों सभ्यताएं आई। ये सारी की सारी सभ्यताएं जो हैं इनके समय में अलग अलग विषयों में विकास हुआ। विकास भी नॉर्थ और साउथ दर्जे का हुआ है।
आज जब मैं ये सारी की सारी उस पुराने नॉलेज को देखता हूँ, उसको कंपेयर करता हूँ आज के दौर से, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। तो ग्रीन पीरियड आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ग्रीन पीरियड है, जहाँ मुगल सल्तनत उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है। फिर कॉलोनियल पीरियड है जो गुलाबी आप देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो ग्रीन पीरियड आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ग्रीन पीरियड है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक पीरियड है, जिसको हमारे इतिहासकारों ने भी भुला दिया, जो गुलाबों ने भुला दिया। वापस दोबारा हम उसके अलावा जो ग्रीन पीरियड आप देख रहे हैं, वो भारतीय ज्ञान राम का पीरियड हम शुरू करें, लॉर्ड राम का, और 5000 BC से शुरू करके गुलाबों ने भुला दिया। वापस दोबारा हम कृष्ण जी का पीरियड 3000 BC, और उसके बाद महाभारत राम का पीरियड हम, और फिर महावीर जैन बुद्ध आए, आदि शंकराचार्य आए, और उसके बाद 325 BC से अब लगातार 3000 BC, और उसके बाद विदेशियों के हाथों कोई ना कोई और फिर आक्रमण इन्वेजन जो चल रहा, आदि शंकराचार्य, और उसके इस पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें विकास हुआ। और हमारा जो मेन जो साधन, मेन जो हमारा लिटरेचर है, दैट इज वेदास। डिटेल्स में इसके मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आप सब ने पढ़ा है, आप उसको जानते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि 4 वेदों को मिला करके तकरीबन 20,000 मंत्रास है, और इन 20,000 मंत्रास में हर ज्ञान का बीज छुपा हुआ है। और ये कोई पुराना ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान है जिसको मथ के सारे वेस्ट ने अपनी सारी थ्योरीज निकाली, जिसके सिर पर उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया है। और इसके साथ अगर मैं 4 उपवेदास देखूं तो आयुर्वेदा, चरका और सुश्रुत जो है हमारे, धनुर्वेद जिसमें सारी शास्त्रों की विद्याएं हैं, गंधर्व वेद, और हमारी बेसिकली जो भवन की विद्या है, वो सारी विद्याएं 4 उपवेदों में समाहित हैं। 6 इसके वेदांग हैं, और उनके लिए जो एक तरह से सिमलीज भी साथ दी गई हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्तम, ज्योतिषम, कल्पम, सब का सब उसमें समाहित है। 18 डाइटीज की जो फायर, जजना, चांटिंग मंत्रास आप सबको मालूम है, बहुत फेमस पेंटिंग्स है, पुरानी पेंटिंग्स है। और इनकी मैं अगर मॉडर्न डे रिलेवेंस देखूं तो 1 to 1 इसमें करस्पॉन्डेंस बनती है। मतलब ये ओरिएंटल साइंस नहीं है, ये मॉडर्न साइंस भी है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट फंडामेंटल ऋग्वेदा से शुरू होके देन मेलोडीज एंड चैंट्स जो है, रिसाइटेशन ऑफ हिम्स हैं, प्रेयर्स हैं, मंत्रास हैं, और इसके बाद जो अथर्ववेदा में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, हीलिंग, प्रोटेक्शन, मैरिज, सारे सोशल इश्यूज डील किए गए। तो ये बीज है जो भारतीय ज्ञान परंपरा का, और इस बीज को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। तो इसमें अगर सिंगल स्लाइड में अगर मैं पेश करना चाहूं तो 1500 से 1200 BC जो है 4 वेद आए, फिर पुराणाज आए, 18 जो है वो पुराण आए, 24 उपनिषद लिखे गए, और जो रामायण और भगवत गीता
इनका जो पीरियड है इन वेदों से पहले का है। पहला रामायण है, फिफ्थ सेंचुरी बीसी, और थर्ड सेंचुरी बीसी जो भागवत गीता है। तो तकरीबन सारी जो ज्ञान परंपरा है वो इस लिटरेचर में हमारी निहित है। अब अगर मैं देखूं कि टेक्नोलॉजीज के लिए इसका क्या रेलेवेंस है, तो 64 कलाएं हैं जो कलाएं हमें बताई गई हैं। समय शॉर्ट है तो मैं सिर्फ इनके नाम सिर्फ पढ़ने चाहूंगा, और इसमें हर एक कला के ऊपर आपको इनफ लिटरेचर अवेलेबल है। और ये जो IKS है इस पे काम कर रहा है, इतना बढ़िया काम इन्होंने किया है। इतनी छोटी सी टीम है, लेकिन जो निकाल के जो मत के सामने लाए हैं, आप भी देखेंगे बड़ा आनंद आएगा आपको। और मैं समझता हूं कि उसको लेकर के आगे चलिए, बहुत कुछ हो सकता है। आर्ट ऑफ सिंगिंग, आर्ट ऑफ प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आर्ट ऑफ डांसिंग, आर्ट ऑफ थिएटर, आर्ट ऑफ पेंटिंग, आर्ट ऑफ पेंटिंग द फेसेस एंड बॉडी विद कलर। अभी टैटूज की दुनिया चल रही है, अरे हमें तो ये 4000 साल पहले से ज्ञात थी, दुनिया आज लेके तो सामने आ रही है। Art of preparing offerings from rice and flowers, art of making covering of flowers of the bed, art of composition pertaining rehearsals for purifying the clothing, teeth, and dying bodies, art of making the craft of carving the groundwork of gems. जेम्स फिट करने के लिए जो उसका ग्राउंड वर्क बनना है, उसके लिए भी एक आर्ट, उसके लिए भी एक कला जो है विकसित पूरी तरह से थी। आर्ट ऑफ कवरिंग बेड, आर्ट ऑफ प्लेइंग म्यूजिक इन वाटर, आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर, आर्ट ऑफ प्रैक्टिकली अप्लाइंग एंड admixture of colors, art of designing a preparation of wreaths, फिर मुकुट बनाने की कला, मुकुट पहनाने की कला अपने आप में बड़ी कला थी। आर्ट ऑफ प्रैक्टिकली signs in the tiring of rooms, art of decorating targets of the ears, कान के पीछे का जो हिस्सा उसको, उसके लिए भी एक अलग अलग कला बनी हुई थी। आर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिक्स, आर्ट ऑफ अप्लाइंग और सेटिंग ornaments, art of juggling, art of preparation of ointments, art of sledge of hands, हाथ की सफाई। अभी तो दुनिया बहुत किस्म की सफाई दिखा रही है। आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग वेराइटीज ऑफ डिलिशियस फूड, अभी आप इसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, इसके ऊपर बड़े सारे कोर्सेज चला दिए हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज आ गए हैं। तो हम लोग तो 4000 साल पहले से ऐसी कलाएं जानते थे, इसको चला रहे थे। आर्ट ऑफ टिंगिंग draughts with red colors and preparing palatable drinks, bartenders समझ लीजिए आप इसको। Art of needlework and weaving, art of playing with threads, art of playing on flute and small drums, art of making and solving riddles, art of practicing language difficult to be answered by others, art of reciting books, art of enacting short plays and anecdotes, art of solving enigmatic verses, art of designing preparations of shield, cane and arrows, art of spinning by spindle, art of carpentry, art of engineering। अब ये देखिए ऐसी कलाएं आ गई जो डायरेक्टली IIT जैसे संस्थान में यूजफुल है। आर्ट ऑफ टेस्टिंग सिल्वर इन ज्वेल्स, आर्ट ऑफ मेटलर्जी, ये होलोग्राम आ गया अभी, और उसकी कला जो है हमें ज्ञात थी, और उसी के हिसाब से सारे ज्वेल्स टेस्ट होते हैं आज भी। आर्ट ऑफ टिंगिंग ज्वेल्स,
art of practicing medicine or medical treatment by herbs, art of knowing the mode of fighting of lambs, cocks and birds. उनके नेचर को आप समझते हो, उसके उनके नेचर को समझते हुए आप ह्यूमन नेचर को समझते हो, इसलिए ये आर्ट्स, ये इसको एज एंटरटेनमेंट भी यूज किया जाता था, एज लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल होता था. आर्ट ऑफ मेंटेनिंग और knowing conversation between the male and female cockatoos, तोता मैना जो बात करते थे, पक्षियों की भाषा समझना, that is basically the art. Art of feeling or cleaning a person with perfumes, art of combing hair, art of talking with fingers. अभी आप talking with fingers को आप देखते हो और आप उसको साइन लैंग्वेज कहते हैं. और ये साइन लैंग्वेज देखिए 4000 साल पहले से हम लोग यहाँ चली आ रही है, हम उसको अभी तक नहीं पहचान पाए. हम अभी वेस्टर्न लैंग्वेज की तरफ ही भागे जा रहे हैं. आर्ट ऑफ यूज ऑफ एमुलेट्स, आर्ट ऑफ नोइंग प्रोविंशियल डायलेक्ट्स, क्षेत्रीय भाषा को सीखना, आर्ट ऑफ नोइंग प्रेडिक्शंस बाय हेवनली वॉइसेस, आर्ट ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारी आ गई जितने मूविंग पार्ट्स वाली चीजें हैं, आर्ट ऑफ फैब्रिकेटिंग बारबाडोस और फॉरेन सोफिस्ट्री, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको हम कहते हैं, आर्ट ऑफ कंपोजिंग वर्सेस, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग अ लिटरेरी वर्क और अ मेडिकल रेमेडी, आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग एज अ बिल्डर ऑफ श्राइन, आर्ट ऑफ द यूज ऑफ lexicography and meters, art of concealment of clothes, fashion. इतना बड़ा एरिया था उस समय. art of knowing specific gambling, art of playing with dice and magnet, art of using children's toys, art of enforcing discipline, art of gaining victory, art of awakening masters with music at dawn, and art of mineralogy. तो ये सारी जो कलाएं हैं, 64 कलाएं, उनका वर्णन किया गया है, इनके ऊपर ग्रंथ अवेलेबल हैं. ये सिर्फ नाम नहीं बताए जा रहे हैं यहाँ, और IKS डिवीजन जो है उससे आप इसके बारे में सारे डिटेल्स आप ले सकते हैं. तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनका विजन है कि भारत एज विश्व गुरु. आप कभी आपने नहीं सुना कि भारत सुपर पावर नहीं कहा उन्होंने विश्व गुरु कहा, क्योंकि सुपर पावर होने की फिलॉसफी दूसरी है और विश्व गुरु बनने की फिलॉसफी भारतीय ज्ञान परंपरा की. और ये दोनों का डिफरेंस अंडरस्टैंड करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम encompasses all of the systematized disciplines of knowledge. इसमें हाई डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन है. इंडिया have evolved, refined and preserved over generation all kinds of tradition and practices, और इनको ही हमें आगे लेकर के जाना है. Indian culture and philosophy, we have rich legacies to the world heritage which must be nurtured and preserved for posterity, researched and enhanced and put to new use through our education system. ये इसका बेसिक मैसेज मैं कहूंगा जो सारी बात का है. अगर लर्निंग्स में बात करूं एंशिएंट भारत से, तो हमारे पास 5 जो है मेन किस्म से इसको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूज किया जा सकता है. एक तो एजुकेशन मॉड्यूल्स टू प्रिपेयर फॉर द रियल वर्ल्ड. तो जो एंशिएंट इंडियन गुरुकुल से दे यूज्ड टू फोकस ऑन इम्पार्टिंग नॉलेज व्हिच वुड बी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड टू फाइंड सॉल्यूशंस. तो इसमें जो है लॉ, एथिक्स, आर्किटेक्चर, वेलफेयर जैसे सब्जेक्ट्स जो है वो बच्चों को शुरू से पढ़ाए जाते थे. अभी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हम उसमें हायर ऑर्डर स्किल्स की बात कर रहे हैं. तो वो ऑलरेडी थी हमारे यहाँ. नॉलेज एंड स्किल्स सच एज क्रिटिकल एनालिसिस, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप imparted with practical projects. We will help engage conscious global citizens with an agency
and a will to transform their communities and planet for the better. पहले अपनी कम्युनिटी सुधारेंगे तभी दुनिया को सुधारेंगे। दूसरा है कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये आज की दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। गुरुकुल ट्रेडिशन जो था कि टेक्स्ट बुक से भी सीखते थे, टीचर टेक्स्ट बुक अप्रोच भी थी, पीपल टू पीपल अप्रोच भी थी, कोलैबोरेशन था, शेयरिंग ऑफ आइडियाज था, इंटरेक्शन था, डिस्कशन था, ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, वो सारी चीजें तो डिस्कस, डेलिब्रेट एंड डिबेट विद ईच अदर है, विद ग्रुप्स है। फिर स्टूडेंट्स बिकेम को क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज एंड अडॉप्टेड स्किल्स टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। आज की डेट में लर्निंग टू लर्न सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्किल है मेरे हिसाब से। अगर लर्निंग टू लर्न आपके पास है और हृदय जो है वो आपका यंग है, तो आप कुछ भी किसी भी एज पे कर सकते हैं। इसी तरह से जो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट लीड्स टू बेटर लर्निंग आउटकम्स फॉर लर्नर्स, और यही अप्रोच जो है ये गुरुकुल सिस्टम में फॉलो की जाती रही है। फिर कोर वैल्यूज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो इसमें एथिक्स एंड वैल्यूज एजुकेशन रिमेन, दैट इज द कोर ऑफ लर्निंग इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो वैल्यूज जो है उसमें सेल्फ रिलायंस, एम्पैथी, क्रिएटिविटी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, काइंडनेस, 10 यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जो हमें हर हाल में अपने बच्चे के जहन में डालनी है, उसके दिमाग में डालनी है, उसके डीएनए में डालनी है। वो उसको 5वीं क्लास पहुंचने से पहले अगर हम डाल पाए तो वो एक अच्छा नागरिक बन जाएगा और एक अच्छा विश्व नागरिक बनेगा। हम यही नहीं कहते कि भारत के लिए बने, हम कहते हैं विश्व के लिए अच्छा नागरिक बने। और वो एक कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटेंट और इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो लर्नर बन पाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। जिसके पास वैल्यूज है वो ये सब कर पाएगा। और मॉडर्न वर्कप्लेस और इकोसिस्टम्स व्हिच आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, they prefer professionals who showcase life skills and strong values along with thematic know-how, and they go on to become conscious, forward-looking leaders with strong morals and ethics. तो कोई भी ग्लोबल कंपनी है, they look for these values. और स्टूडेंट सेंट्रिक और पर्सनलाइज लर्नर सेंट्रिक अप्रोच जो है ये एक हॉलमार्क रहा है हमारे गुरुकुल सिस्टम का कि एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उसी क्लास में पहली क्लास का बच्चा भी है, दूसरी का बच्चा भी है, तीसरी का बच्चा भी है, और सालों से नहीं डिसाइड होता कि ये कौन सी क्लास में है, उसकी लर्निंग आउटकम से डिसाइड होता कि कौन सी क्लास में। और वही सिस्टम एनईपी दोबारा लेके आई कि हम लर्निंग आउटकम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि क्या उसने जो सीखना था वो सीख गया। अगर वो जल्दी सीख गया, वो जल्दी आगे चला गया। अगर वो आम बच्चे से देर से सीखा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो स्टिग्मा नहीं है। हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल जो अपनी है अलग। तो जो नॉन लीनियर प्रोग्रेशन इसको कहते हैं, जो उसकी अप्रोच है, that meant that the gurus understood the differential skills of their students and crafted teaching methodologies accordingly. अब भीम को गदा सिखाई और अर्जुन को धनुष बाण से सिखाया। अब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को दोनों चीजें नहीं आती होंगी। उनके गुरु ने उनकी एक स्पेशल प्रतिभा को पहचाना, उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया। तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग है। उसके स्ट्रेंथ को पहचानते हुए आप कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट मस्ट बी अलाउड टू एंगेज एट देयर ओन पेस विदाउट हैविंग टू अलाउ एक्ट विद द कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ए फिक्स करिकुलम। करिकुलम आपने दिया, लेकिन आपने लर्निंग आउटकम दी साथ, और पर्सनल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है इसके लिए इंकरेज किया। इसी तरह से जो इवैल्यूएशन है, that is again very, very important. And the ancient evaluation of education was not restricted to grading thematic knowledge only. Students were assessed on skills they learned and how well they can apply the practical knowledge to real life situations. Life skills जिनको हम कहते हैं, that was very important. So India has an unparalleled wealth of knowledge, tradition and systems, most of which were scientifically backed. और हमें क्या करना है, उसी साइंटिफिक प्रिंसिपल को दोबारा ढूंढ के लाना है, दुनिया के सामने रखना है,
ऐसा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारे पास सारी नॉलेज है, सिर्फ उसको कहने के बजाय उसको प्रैक्टिकली प्रूव करना है। और उससे उस काम के लिए आईआईटी से अच्छी संस्था कोई हो नहीं सकती। तो कुछ साइंटिफिक प्रूफ जो देना है, उसमें जो मास्टरी जो हमारे आईआईटी सिस्टम्स की है, आउटस्टैंडिंग, और दुनिया उसको मानती है। So with this we'll be able to truly develop bright, resilient global minds with beliefs and values firmly rooted in glorious Indian culture and traditions. Subject specific में अगर मैं आऊं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बहुत काम करने की जरूरत है। इसमें अरे कोई नहीं है, दरअसल आपका होम बटन के साथ ही आपका लास्ट बटन भी साथ ही है ना, कोई यार। तो जो सब्जेक्ट लर्निंग्स हैं, इसमें तर्क वितर्क है, उसके बाद वाद विवाद जिसको बोलते हैं, वाद विद्या है, फिर साध्या है, सिद्धांत है, हेतु है, उदाहरण है, फिर सधर्म है, विधर्म है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है और प्रमाण है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो साइंटिफिक प्रूफ के लिए आप आमतौर पर इंजीनियरिंग में यूज करते हो। इसी तरह से जो नोइंग बेस्ड ऑन 4 कंडीशंस, कि जो आपने सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज है, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर है, कि कॉम्बिनेशन है, कि नेचर ऑफ नॉलेज, उसके हिसाब से आपने कैसे उस सब्जेक्ट को डील करना है। आपको तकरीबन जो पुराने हमारे साइंटिस्ट हैं उन सब के बारे में पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट नेम देम। मैथमेटिक्स में आर्यभट्टा साहब, मेटलर्जी ये आपकी 8th सेंचुरी एडी में नागार्जुन, ही रोट रसा रत्नाकर। और इसमें आप देखिए कि जिंक के एक्सट्रैक्शन को, जिसको कि वेस्ट ने 1746 में ढूंढा, हम 2000 साल पहले से इस टेक्नोलॉजी को ढूंढ के चला रहे थे। और इसकी पुरानी जो हमें फर्नेसेस भी जो है मिली है। इसी तरह से जो हमारी 6 इंडियन फिलोसफीज है, फिलोसफिकल हमारे जो अप्रोच है, ये आज दुनिया इन सारी अप्रोचेस को मान चुकी है। तो इसको मैंने अपने जो ह्यूमैनिटीज हैं, ह्यूमैनिटीज में लिबरल आर्ट्स में इसको कैसे लेकर के आना है, ये मुझे देखना पड़ेगा। इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी में जो भास्कराचार्य, इन्होंने जितना काम किया है, इसी के ऊपर बिल्ड करके बाद में वेस्ट ने भी आगे इसको बढ़ाया, जिसकी वो उन्होंने उस समय उन्होंने ऐसे ऐसे जो डेटा पॉइंट्स निकाले, फॉर एग्जांपल कि जो अर्थ जो है वो सन के जो ऑर्बिट करता है, उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है, दैट इज नॉट इजी, बट उन्होंने किया। और ये आज की डेट में भी प्रूवन है कि ये ठीक है। इसी तरह से सुश्रुता सर्जरी जो है आपकी, ये 6th सेंचुरी बीसी की बात है। 6th सेंचुरी बीसी में इस तरह के औजारों से सक्सेसफुली लोगों ने ऑपरेशंस किए हैं। चरक संहिता, बेसिकली एमडी मेडिसिन आप कह लीजिए, अभी भी इसके बेसिस पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईआईटी के पास आउट हैं, प्रयोग कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो सिर्फ जो अरोमा से, ऑयल के स्मेल से ही
बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर रहे हैं। एक कंपनी है गॉड्स ओन स्टोर करके, तो दिल्ली में ऑपरेट करता है, और उसने हमेशा ही साइंटिफिक वर्ल्ड को, जो मेडिसिन के वर्ल्ड को चैलेंज किया है, और हर चैलेंज में वो जीता है। So I'll request him to come here sometime and interact with everyone here. तो इसी तरह से जो अगर मैं देखूं, मेरे चाहे डिप्लोमेसी की थियरी है, डिप्लोमेसी सिंपल है कि योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी एंड नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। और जो हमारी डिप्लोमेसी है वो इन 6 चीजों में समाहित है कि पीस है, न्यूट्रलिटी है, अलायंस है, डबल डीलिंग है, प्रिपेयरिंग फॉर वॉर है, और इसके बाद फाइनल वॉर है। हम वॉर तक नहीं जाते जब तक हम पहले 5 जो साधन है उनको पूरी तरह से हम यूज नहीं कर लेते, हम वॉर पे नहीं जाते। और यही फिलॉसफी आज तक चल रही है। इसके ऊपर अगर आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लगा करके देखेंगे तो बहुत आराम से कई सारे आर्टिकल्स आप निकाल पाएंगे, और जहां जहां ये पॉलिसी लगी है वहां वहां सबका भला हुआ है। यूटेंसिल्स है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी हम ग्रीन्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ तो हम इतने पुराने समय से ग्रीन्स की बात करते आए हैं कि हमेशा प्रकृति से सामंजस्य कैसे रखना है, कि बिना प्रकृति को कष्ट दिए अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, प्रकृति को भी आगे बढ़ाना है, उसको भी कष्ट नहीं देना है। और जहां जहां कष्ट दिया है उत्तराखंड में या हिमाचल में, वो आप प्रलय देख रहे हैं आप, तो वो नहीं होना है। इसी तरह से जो ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इसमें तो अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, और ये एक एरिया है, मैं IIT रुड़की से कहूंगा कि इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। इसमें ये ड्रिप इरिगेशन से लेकर के, और इसमें जो रिजर्वायर बना करके इसको करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पर्माकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत देर से हम लोग कर रहे थे, और ये सब वैदिक पीरियड से चला आ रहा है, ये आज का नहीं। इसी तरह से जो आपका ड्रिप इरिगेशन है, ट्यूबवेल इरिगेशन है, इसमें सुरंग इरिगेशन कहते थे। अभी ट्यूबवेल इरिगेशन को भी खत्म करके हमने भी सुरंग इरिगेशन पंजाब में मैंने इम्प्लीमेंट किया 2016 में। पाइप से मैंने पानी जो है खेतों में पहुंचाया है, जिससे फर्दर सेविंग होती है। और ये सुरंग इरिगेशन हमारे यहाँ 4000 साल पहले से था। इसी तरह से जो स्मॉल स्केल और लोकल ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, इनको इकट्ठा करने की कोशिश की है एक जगह पर, किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ कौन से पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे सीखा जा सकता है। तो हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है IIT में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसको आगे बढ़ा पाए। तो देखिए सारे स्ट्रक्चर्स अभी प्रिजर्व्ड हैं वैसे, और इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो दैट इज रियली वेरी गुड। इसी तरह से जो एंशियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, वहां से हम बड़ा कुछ सीख सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मैंने पंजाब में हैंडल किया है, और मैं आपको बता सकता हूं कि इस समय कितनी जर्जर हालत है हमारी जमीन की। जमीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है जो दूषित न हुआ। अगर इसको धोना है तो कम से कम 4 फसलों के लिए उसको खाली रख के उस पर पानी मुझे गुजारना होगा, उसको पानी से धोना होगा। और पानी से धोऊंगा भी तो जो भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जो उसमें फर्टिलाइजर्स हैं, वो जमीन के नीचे चले जाएंगे, एक्वाफिर 1 एक्वाफिर 2 में जाएंगे, सारा पानी दूषित हो जाएगा। तो आपको बठिंडे के एरिया का कैंसर वाला आपको पता ही है क्या हुआ, कैसे हुआ। तो पानी बहुत दूषित हो गया है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो हमें इनका सुधार करना है। फिर इम्प्रूविंग सीड जर्मिनेशन की प्रैक्टिसेस हैं। फिर ग्राफ्टिंग, जो बहुत बाद में हम लोगों ने वेस्टर्न वर्ल्ड ने सीखी, वो हम बहुत पहले से करते चले आ रहे थे। इसी तरह से जो एग्रो फॉरेस्ट्री मैंने पहले बात की, नेचुरल फर्टिलाइजर जो है अग्नि पुराणा में उनका एप्लीकेशन है, आप देख पाएंगे। और वहां से लेकर के इसको बड़ी आसानी के साथ आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे अप्लाई किया जाए, इसके ऊपर काम हो सकता है।
काम करना जरूरी है इसके ऊपर। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स जो हैं, जो वैदिक पीरियड से आगे जा करके हमने लिया, स्लैश एंड बर्न, जो टेरेस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन सिस्टम, एनिमल हस्बेंड्री के सिस्टम्स, इसके ऊपर भी बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। और फिर हम जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें एनवायरमेंटल फीचर, सोशल फीचर्स और इकोनॉमिक फीचर्स, इन तीनों के बीच में एक बैलेंस कैसे बना के चलना है, एक सामंजस्य कैसे बनाना है, ये भी हमारे लिटरेचर में बहुत खुल के दिया हुआ है, इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हम वर्ल्ड को गाइड कर सकते हैं और वर्ल्ड सारा इसी के पीछे लगा हुआ है। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में जहां तक था कि अगर आपने सीड्स रखने हैं तो अर्दन पॉट पाइल बना के रखने हैं, ताकि अगर उसमें से एक सीड खराब होता है तो बाकी के पॉट्स ना खराब हो। अब देखिए कैसी आइसोलेशन, कितनी सुंदर विधि बनाई हुई थी लोगों ने। और ये आज के डेट में भी बहुत इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं, उसमें यही प्रैक्टिस इस्तेमाल होती हैं। फिर टाउन प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ये तो मैं क्या कहूँ, इसमें तो हमारा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट जो है, इसमें भारत का नंबर 1 डिपार्टमेंट है। और मैं कहूँगा कि अब वो समय आ गया है कि हमें जो अपने 2000 साल, 1000 साल, 800 साल पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे, उनकी कंप्लीट इंजीनियरिंग को प्रिजर्व करने का काम शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि जब अभी वेस्ट को नाक नहीं पूछना आता था, हम लोगों को डायबिटीज हो चुकी थी। ये हम लोग मजाक में कहते थे आपस में, और मैं देख रहा हूं कि ये गलत नहीं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बड़ा कुछ सीखा जा सकता है। और वाई ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारे पुराने मंदिर बने हुए हैं आप उन्हीं को देख लीजिए। तो अंत में मैं कहूंगा कि जो आईकेएस है, इसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, दोनों ने इसको होल हार्टेडली सपोर्ट किया है। अभी यूजीसी ने जो अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं, उसमें उन्होंने आईकेएस के लिए भी क्रेडिट्स रखे हैं। आज ही मैं आईआईटी रुड़की में भी बात कर रहा था। आईकेएस के ऊपर आप कोर्स चला सकते हैं, कोर्स को क्रेडिट्स दे सकते हैं। उन कोर्सेज में आप जो बच्चों से प्रोजेक्ट करवाएं, उन प्रोजेक्ट में एक एक जो मॉन्यूमेंट लेकर के, एक एक जो ऐसा फीचर लेकर के, उसके डिटेल्स में जा करके उसको आज के साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य में कैसे एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर थीसिस छाप करके हम दुनिया का बहुत बड़ा भला करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस एरिया में काम करने की जरूरत है। और ये मैंने बताया कि ऑलरेडी जो है इसका प्रोविजन एनसीआर में भी है और यूजीसी ने भी इसका प्रोविजन किया हुआ है। आप भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और हमारे पास भी है कि अगर कोई ऐसी संस्था जो भारतीय ज्ञान परंपरा में काम करना चाहती हो, उसको नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज करने की बात है, वो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो को कभी आज तक रिकॉग्निशन नहीं मिला था, वो सारे कोर्सेज हमने रिकॉग्नाइज कर दिए। और इस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा जो भी कोर्सेज आप बना के लाएंगे, उनको रिकॉग्निशन देने का जिम्मा एनसीबीटी का है। मैं आईआईटी रुड़की का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रोफेसर पंत का, प्रोफेसर गौरी मूर्ति जी का, प्रोफेसर घंटी मूर्ति जी का, इन्होंने इस विषय को इतनी सहजता, सरलता से आप सबके सामने रखने का, शेयर करने का मौका दिया।
और ये कोई लज्जा का विषय नहीं है, ये प्राइड का विषय है। जब मैं इस पे बात करता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है कि जो चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड को पिछले 200 साल में पता लगी हैं, हमें वो 4000 साल पहले पता थी, और ये आज वेस्टर्न वर्ल्ड भी जानता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है। उनकी आंखों में दिखता है, उनके एक्शंस में दिखता है। तो हमें भी इसको पहचान लेना चाहिए, इस टैंक को लेकर आगे चलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Dr. Nirmaljit Singh Kalsi, sir, for those precious words. I would now like to request Professor K.K. Pant, Director, IIT Roorkee, to felicitate the Chief Guest, Dr. Nirmaljit Singh. Thank you, sir. I request Professor U.P. Singh, Deputy Director, IIT Roorkee, to felicitate Professor Srinivasa Varakhedi. I also request him to felicitate Professor Ganti Murthy. Thank you, sir. The attitude of gratitude is a key virtue embedded in Indian culture. To deliver the vote of thanks, I would like to invite Professor Avalokita Agarwal. नमस्ते माननीय अतिथिगण, सम्माननीय महानुभावों, सभी प्रतिष्ठित व्यक्तिगण, प्रतिभागियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के समस्त शिक्षकगण, छात्रों एवं छात्राओं, मैं भारतीय ज्ञान संपोषण केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की ओर से भारतीय ज्ञान प्रणाली संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह संगोष्ठी हमारे भारतीय ज्ञान प्रणाली के महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रतिभागियों के विचारों को एकत्र करने का एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही है। हम सभी इस समय को सफल बनाने के लिए और एक दूसरे से सीखने के लिए यहाँ साथ आए हैं। यह संगोष्ठी हमारी भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के गूढ़ रहस्यों को समझने और उसकी तरफ एक और कदम आगे बढ़ाने का एक प्रतिष्ठान जैसा है। सत्र का प्रारंभ हमने अपनी संस्कृति, ज्ञान और परंपराओं के प्रति दीप के प्रज्वलन के साथ किया। दीप का प्रकाश हमें याद दिलाता है कि हमारे भारतीय ज्ञान की प्रकाशमान धारा सदियों से हमारे जीवन को प्रकाशित कर रही है और करती रहेगी। भारत ज्ञान का उद्गम स्थल भी है और इसे आत्मसात करने वाला देश भी रहा है। इसने ज्ञान के सभी रूपों को, चाहे वह कला, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दर्शन या आध्यात्मिकता हो, विकास और वृद्धि के लिए पोषण और अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। और इस सब के बारे में सबसे शानदार बात यह है कि यह सारा ज्ञान जो इस भूमि पर विकसित हुआ है, जैसा हमारे मुख्य अतिथि श्री निर्मलजीत सिंह कलसी जी ने भी कहा, वह इस स्पष्ट समझ के साथ विकसित हुआ है कि केवल हम ही इस सृष्टि के उपभोक्ता या उत्तरजीवी नहीं हैं। इसमें सभी जीवित और निर्जीव प्राणी एक साथ हैं। स्थिरता या जिसे हम आज सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, उसका विचार इस संपूर्ण ज्ञान निकाय का केंद्र है। और यही कारण है कि आज भी हम
सदियों पुरानी भारतीय ज्ञान प्रणालियों के इस विषय पर विचार विमर्श करने में सक्षम हैं, जिसकी नींव हजारों साल पहले रखी गई थी और जो विभिन्न बुद्धि वाले लोगों के योगदान से विकसित हुई है। इस समझ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी जी, अध्यक्ष एनसीविट, उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को आज के समारोह को अपनी उपस्थिति से कृतार्थ करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। अपनी व्यस्तताओं के रहते हुए भी आपने हमारे कार्यक्रम को गौरवान्वित किया, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। आदरणीय विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर गंटी मूर्ति जी, राष्ट्रीय समन्वयक IKS डिवीजन एट AICTE MOE, एवं प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, आप दोनों को इस संगोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए मैं IIT रुड़की की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके मार्गदर्शन में प्रोफेसर मूर्ति IKS डिवीजन हमें पूर्ण सहयोग देता है। आज की पुस्तक प्रदर्शनी और कई और तरह से उन्होंने हमें सहयोग दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय निदेशक प्रोफेसर के पंत जी का सहयोग और मार्गदर्शन इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपकी उपस्थिति हमें संबल प्रदान करती है। आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आपका धन्यवाद सर। हमारे संस्थान के उपनिदेशक प्रोफेसर यूपी सिंह, जब भी हम किसी कठिन स्थिति का सामना कर रहे होते हैं, अपने मार्गदर्शन से सरलता से उसका समाधान कर देते हैं। IKS समिति की ओर से आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किसी अकेले व्यक्ति की क्षमता से बहुत ऊपर है और एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करना पूरी टीम की जिम्मेदारी है। इस संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए मैं प्रोफेसर अनिल गौरीशेट्टी जी के नेतृत्व में पूरी IKS टीम, जिसमें संस्थान के कई संकाय सदस्य हैं, उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और संकाय सदस्यों के साथ साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे छात्र और छात्राएं, जिन्होंने हमें निरंतर सहयोग दिया है, हमारे साथ दिन रात खड़े रहे हैं, उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं इस सत्र के उद्घाटन सत्र में सभी प्रतिभागियों, उपस्थित व्यक्तिगणों और संस्थान सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस सत्र को महत्वपूर्ण और सफल बनाने में योगदान दिया है। आपकी उपस्थिति ने इस सत्र को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है और इसके साथ हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है और मैं कामना करती हूँ कि हम सभी साथ मिलकर इसी धारा प्रवाह को आगे बढ़ाएं। आने वाले सभी सत्र बहुत रोचक और ज्ञानप्रद हैं। आप सभी इन सत्रों का लाभ उठाएं और परस्पर ज्ञान में वृद्धि करें। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। Thank you, Professor Avalokita. I would like to invite all the chief guests and guest of honor, director, deputy director, and Professor Gauri Shetty on the stage for a photo session. Thank you once again to all the respected dignitaries for making it to the inaugural session.